everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing good and be safe. So today's topic is how to do question solving. And I know a lot of you must be experiencing problem in this, and if you're starting for a NEET prep right now, then you must be thinking कहाँ से start करूँ, कहाँ से question बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या तरीका रखना चाहिए. So first of all, it is why question solving is important. You read the text, you understand the concepts. बट आपको अपने वीक पॉइंट्स तभी पता चलते हैं व्हेन यू अप्लाई देम. यू गेट टू नो कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, एंड दोज आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू फोकस ऑन बिकॉज इट विल लीड टू योर वीक पॉइंट्स एंड यू नीड टू बिल्ड दोज कॉन्सेप्ट्स. वही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने से बचाते हैं. नाउ लेट्स कम टू द टूल्स दैट यू नीड. सो बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू नीड टू सॉल्व. सिंस नीट एंड इवन जेई इज नॉट अब उतना टफ I would say बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता है. इट्स स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड एंड एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. इट्स जस्ट दैट उन कॉन्सेप्ट्स को घुमा दिया जाता है, एंड वो कॉन्सेप्ट्स जो घुमा के क्वेश्चंस होते हैं वो जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता लग जाएगा एंड यू विल बी कंफर्टेबल विद इट. सो यू नीड टू सॉल्व स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स एंड don't solve those books like Truman's Pradeep in biology, and you are going to solve those books, let me tell you, in physics, Singage and all, and matlab, there are so many books. Just don't go after them. Try to stick to your coaching modules or any strictly NCERT based book. There are so many options out there, even online, offline, both. Second is, what if you get stuck on a question, from where to get its solution. Now, I'm sure students sitting at that side of the screen, you must be thinking, I want to join this IIT, I want to join this AIMS, DU, and even KGMC where I am right now. And if you're doing totally self-study, it becomes a sangharsh. It's a fight of self versus self. And sometimes when you don't get a tutor who can, clear your concepts and make you understand the questions where you get stuck upon, it really gets tough. Now, Philo app gives you this ability to solve and understand your concept at any time of the day. For example, if you're not getting to understand this question of rotational motion, just click the pic and upload it, and it will connect you to tutor at any time of the day within 60 seconds. Now, it's a one-to-one interaction, and you can solve unlimited questions with that tutor at your understanding speed without any judgment. And if you have a favorite tutor, you can mark favorite and then you can ask him questions. So I really think that it's the most effective personalization for JEE NEET students, and I really think you should try it. So please go down in the description box and check the links to download the app. Now let's come to the method that I used to undertake for question solving, and I would really like to explain you it on a paper or an iPad. So please watch it nicely, because I'm sure in the long run it's gonna help you a lot. And beforehand I want to tell कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के एक महीना पहले ये काम स्टार्ट कर रहे हो, because it's a matter of hard work, so that लास्ट के 2-3 महीने में you don't have to burden yourself with so much questions and things like that. So please watch it nicely. So right now I'm going to tell you the method that I use to solve questions. So now thing is, when you first time solve something, if you are taking, let's suppose, 100 to 150 questions at once, now this is not the time where you have to mark or mark important questions. No, not right now. First time, just solve the questions. Just solve the questions, because it's highly possible that अभी just आपने concepts apply करना सीखे हैं and easy से भी easy question आप नहीं solve कर पा रहे हो. So try to first inculcate the concepts in your mind. और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको तुरंत में लगेगा ये नहीं आता मुझे, आप मार्क कर दोगे, बट बाद में वो आप पे एक लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि तब वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आपको लग रहा होगा मैं इस पर रिवाइज करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ. सो फर्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू मार्क एनीथिंग, जस्ट सॉल्व. So do you get it? That first time, all you have to do is just solve the questions nicely. Now second time when you solve questions, make note that only these set of questions you have to solve the second time, not another set of questions. Because जब आप 100 क्वेश्चंस 10 बार करोगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, इंस्टेड ऑफ
आप 1000 क्वेश्चन एक बार करो. गेट इट? आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाने चाहिए. सो सेकेंड टाइम व्हेन यू डू द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, नाउ यू गेट इट कि हाँ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में. नाउ यू विल स्टार्ट मार्किंग द क्वेश्चंस. नाउ मेक नोट ऑफ सिम्बल्स जो आप समझ पाओ. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेक अ सर्कल ऑन अ क्वेश्चन, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2, एंड यू मेक अ सर्कल, एंड यू नो कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मुझे सिली मिस्टेक हो रही है. सो मेक दिस लिस्ट. आप उसको चैप्टर के स्टार्टिंग में लगा दो कि ये सिंबल का ये मतलब है. नाउ फॉर सर्कल यू मीन दैट कि ये सिली मिस्टेक है. नाउ मेक अ स्टार एंड यू गेट इट कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ है जो मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है. सो राइट दैट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, राइट इट ऑन योर एरर कॉपी. नाउ सेकेंड इज, फॉर एग्जाम्पल, अब कोई क्वेश्चन है जो ईजी है बट उसमें एक स्टेप पे आप फंस रहे हो. यू कैन मेक अ स्क्वायर एंड यू कैन जस्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ईजी होते हैं लेकिन आप उसमें गलती करते हो, तो उन क्वेश्चंस को आप स्क्वायर में कर सकते हो एंड उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो. ऐसे ही आप और सिम्बल्स बना सकते हो जो भी कैटेगरी में आप डिवाइड करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, आप उस पर कुछ भी बना लो, आप टिक बना लो उस क्वेश्चन पे, तो यू अंडरस्टैंड कि यू आर टेकिंग टू मच टाइम इन दिस क्वेश्चन, तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना है. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ आपने ऐसा किया, इसके बाद जब आप ये मार्किंग आप अपने पूरे पेपर पे कर लोगे, पूरे क्वेश्चन सेट जो आपका है उस पर कर लोगे, अब आपके पास डिवाइडेड है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे तुरंत बन जा रहे हैं, उन पे कोई भी मार्किंग नहीं लगानी है, बट जो नहीं बन रहे, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्चुअल, सिली, पर्सनलाइज, टू मच टाइम, उनको अलग अलग डिवाइड करो. इसके बाद मेक एन एरर कॉपी. नाउ एरर कॉपी इज़ द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स. अगर आपने एक एरर कॉपी बनाई होगी, स्टार्टिंग में आप इसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा है, बाद में आपको इतनी हेल्प करेगी. मैंने जो एरर कॉपी बनाई थी, दैट यूज टू हेल्प मी सो मच लास्ट के टाइम में. मुझे लास्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई थी रिविजन में. सो राइट नाउ यू विल मेक एन एरर कॉपी एंड you will write all these questions. All these questions will go in the error copy. Make for different subjects and if possible हर chapter का ऐसे बनाओ, उसको demarcate कर दो कि इस पेज के बाद से ये chapter start है. If you do this for every chapter and from the starting, trust me, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी. So this is a thing that you have to do for the second time. अब third time, what you have to do third time when you solve the set of questions. Third time में you need to revise your error copy. जो एरर कॉपी आपने बनाई थी उसको पहले रिवाइज करना है. क्वेश्चन बनाने से पहले एरर कॉपी को रिवाइज करना है. उसके बाद सॉल्व क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस, ऑल वन मोर टाइम. इसके बाद आपको लगेगा कि आपके दिमाग में चीज़ें कितने अच्छे से बैठ गई हैं. एंड इसके बाद बार बार आपको टाइम इंटरवल पे अपनी एरर कॉपी रिवाइज करनी है. एरर कॉपी आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार अच्छा होगा. उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत लगे आप एक और बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट 3 बार सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है फॉर एवरी चैप्टर, स्पेशली इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री. प्लीज़ मेक नोट ऑफ दिस. एंड ऑल्सो इन एवरी सब्जेक्ट आप सब चीज़ अपनी नोट कर लो. एक जगह आप अपनी गलतियाँ एक जगह इकट्ठा कर लोगे, आपको पता है कि आपको इस पर वर्क करना है, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो. सो इफ़ यू मेक अ एरर कॉपी यू विल रिवाइज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ इफ़ यू आस्क मी कि ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कितने कितने दिन के गैप पे हो सकता है. पहली बार जब आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने ये सॉल्व किया, उसके बाद आप मान लो आफ्टर 3 days यू सॉल्व इट फॉर सेकेंड टाइम, और वो 3 days के गैप में आप अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन वॉच इट लेक्चर्स एंड लेक्चर में जो क्वेश्चंस पढ़ाया जाए बस वो करो और कुछ नहीं करो. एंड आफ्टर 1 week और 1 week आई गेस मोर 5 days, 5 days के बाद 5 days फ्रॉम फर्स्ट टाइम, 5 days के बाद थर्ड टाइम सॉल्व करो. इसके बाद तुम्हारी जो एरर कॉपी है, एरर कॉपी ट्राई टू रिवाइज इट एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल. Do you get it? As many times as possible. So this was the method that I used, and trust me, it helped me a lot, and I guess it will help you a lot. So do let me know if you like this method, and if you try this, comment after 1 month, 2 months, 3 months, anytime you like, अगर आपको ये method help किया हो. I hope you like this method, and I'll see you guys in the next video. Till then, please stay safe and goodbye.